بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم اهدنا الصراط المستقيم وبك نستعين يا فتاح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. جی انشاءاللہ جو ہے وہ کل جیسے بتایا گیا تھا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو 10 یا 11 تاریخ کو بتائیں گے کر کے امتحان کے بارے میں کب ہوگا کیا تاریخ ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل یا پرسوں بتائیں گے 10 یا 11 تاریخ کو. جی ضرور انشاءاللہ. چلیں یہاں پر دیکھیں پیج نمبر 277 پر. اب یہ جو ہے نا آج کا جو سبق ہے اس کو بہت دھیان سے سننا ہے، اس لیے کہ اب تک جتنا یاد نہیں کرنا ہوگا آج کے سبق میں اتنا یاد کرنا ہے. تو اس لیے بہت ہی ذرا دھیان سے سنیں، اس لیے کہ مسجد نبوی کے بارے میں بہت تفصیل سے یہاں پر جو ہے ذکر ہے، تو ہم لوگوں کو اس کو ذرا دھیان سے سننا ہے. جی آپ بے فکر رہیں، اگر آج نہیں سمجھ میں آیا بھی تو انشاءاللہ کل بھی اسی کو پڑھائیں گے، لیکن آپ بس پیج نمبر 277 کا لاسٹ پیراگراف، مسجد نبوی کی عظمت و مرتبہ. اب یہاں پر سب سے پہلے جو ہے نا نیچے کے پیراگراف میں یہ بتایا گیا کہ یہاں پر جو ہے مسجد نبوی کا جو مقام ہے مکۃ المکرمہ، یعنی مکہ کی جو مسجد ہے مسجد حرام، اس کے بعد سب سے زیادہ مسجد الحرام کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی نماز کی کسی مسجد میں فضیلت ہے تو وہ مسجد نبوی میں. پھر اس کے بعد پیج نمبر 278 پر 278 پر یہاں پر جو ہے سب سے پہلے پیراگراف میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس مسجد کی فضیلت کس اعتبار سے کیسے کیسے زیادہ ہے، تو ہر ایک چیز آپ سنتے جائیں. یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میرے گھر اور مسجد نبوی کا جو ممبر ہے کہ درمیان جنت کے باغ کا ایک ٹکڑا ہے. ریاض الجنہ کہتے ہیں جنت کے باغ کا ٹکڑا. جی تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے حجرے اور میرے مسجد کے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا ٹکڑا ہے. جی ایک بات یاد رکھیں. پھر اس کے بعد اس کی فضیلت بہت حدیث پاک میں آتی ہے، یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، یہاں پر جو ہے عبادت کرنا پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قبولیت کی جگہ ہے. جی جی پھر آگے اسی پیراگراف میں بتایا گیا، ایک تو سب سے پہلے یہاں پر جو ہے جو پورا کا پورا قدیم مدینہ یعنی پورا کا پورا پرانا شہر اس وقت پورے کے پورے جو ہے جو اب مسجد بنی ہوئی ہے وہ مسجد کے حصے میں آتا ہے. یعنی کئی نشانیاں جو ہے اس کی، جیسے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رسول، یعنی پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر. اور اسی طرح پیج نمبر 278 اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تو ان کی جو ہے ان کا مدفن. اب یہاں پر جو ہے پچھلے میں ایک بات جو ہے وہاں پر آپ کو جو ہے بتائی گئی تھی، آگے انشاءاللہ تفصیلی آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو اب یہاں پر یہ تو ایک چیز ہے کہ سب سے پہلے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر ہے، پھر حضرت ابو بکر حضرت عمر کی ہے. اور اسی طرح جو ہے یہاں پر جو ہے قریب میں کئی سارے جو چیزیں ہیں، خاص کر پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں ہماری مائیں، ان کے مکانات، اور اسی طرح جو ہے بہت ساری جو ہے اور بھی چیزیں یہاں پر موجود ہے. لیکن آپ 3-4 چیزیں اس پیراگراف میں یاد رکھیں کہ جگہ جو ہے اس میں کئی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ
हुजरा, हुजरा यानी कमरा, हुजरा यानी कमरा, माँ आयशा का कमरा। उसी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून हुए, यानी दफन प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर भी वहीं पर हैं, और अज़वाज मुतहरात के मकानात भी वहीं पर हैं। तो ये पूरे पैराग्राफ में जन्नत के टुकड़े के बारे में याद रखना है। और दूसरा जो याद रखना है, क्या क्या निशानियां हैं, बहुत सारी निशानियों में से ये कुछ निशानियां। अब नीचे का पैराग्राफ देखें, मस्जिद नबी की तामीर नौ यानी नई तामीर। अब यहाँ पर सबसे पहले एक बात देखें कि आज तकरीबन 1450 साल पहले का जो अरसा है, उसमें जो है 632 ईस्वी में मस्जिद की तामीर की गई। और फिर उसके बाद वो आने वाले वो सदियों में बार बार इसकी जो है उसात और इसकी तोसी और इसका काम होता रहा, है ना। फिर उसके बाद बताया कि ये जो आज का जो बड़ा प्लान जो है डायरेक्ट उसके बाद से लेकर बीच की बातें तफसीली आएगी, लेकिन याद रखें 632 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद 1909 में, 1909 में जो है ये पूरे के पूरे अरब की एक मशहूर मस्जिद, जहां सबसे पहले जो है 1909 में जो है बिजली की रोशनी का इंतजाम किया गया। वरना इससे पहले जो है चिरागों के एतबार से अलग कंदील और लैंप वगैरह का निजाम था, लेकिन मुत्तसिल यानी मिला हुआ, मुत्तसिल मिला हुआ। जी। अब यहां पर जो है 1909 में, या इतना ही याद रखें, जैसे वो अल्फाज है वो याद करने की जरूरत नहीं है। 1909 में सबसे पहले जो है अरब के इलाकों में इस मस्जिद में जो है वो बिजली के रोशनियों का इंतजाम किया गया। और यहां पर दिया गया कि सऊदी बादशाह यानी फरमान रवा यानी शाह अब्दुल्ला इब्न अब्दुल अजीज के दौर में इसको वसी करने का सबसे बड़ा मंसूबा शुरू किया गया, जो अब भी, यानी अब जो है उसका मराहिल जो है चल रहे हैं, वो काम चल रहा है। अब उनका मंसूबा क्या था कि इसमें लाखों लोग आते हैं तो उनके लिए सहूलत हो। तो उनका जो मिशन था, इसमें याद रखना है, 632 को शुरुआत हुई। 1909 में जो है इस मस्जिद में लाइटों का इंतजाम किया गया, बिजली का। फिर उसके बाद यहाँ पर इनका मंसूबा क्या था कि 18 लाख लोग इसमें नमाज पढ़े। कितने लोग? 18 लाख। अब उसकी आगे तशरी और उसका वजात आएगी कैसे, लेकिन आपको जो याद रखने के लिए कहा गया वो याद रखें कि सऊदी फरमानरवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के दौर में जो है इसका मंसूबा बड़ा करने का शुरू हुआ। और 1909 में जो है इसके यहाँ पर बिजली की लाइट वगैरह का इंतजाम हुआ। मंसूबा यानी उसका जो है प्लान, पेज नंबर 278। बड़ा मंसूबा शुरू किया गया, यानी उसका पूरा प्लान और बनाने की जो है तामीर का पूरा स्ट्रक्चर शुरू किया गया। जी। अब यहाँ पर ये तीन बातें तो याद रखिए आप। इन्होंने जो है मतलब ये मंसूबा बनाया, और 632 और 1909, बार बार बोल रहा हूँ, इसको याद रखें। फिर उसके बाद जो है इस मस्जिद में ये इसका रकबा कितना था, यानी इसका कितने चौड़ी थी। मस्जिद नबवी का जो शुरू में रकबा था वो 98 × 135 फीट, है ना। अब उसको याद रखें, 98/115, 115। जी। फिर उसके बाद जो है इसको वसात दी गई बाद में, और इसी तरह जो है ये वसअत होती रही। और ये जो मस्जिद है, मस्जिद नबवी, यहाँ पर याद रखें कि उसके बाद जैसे मैंने बताया 632 याद रखे, 1909 याद रखे, शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज को याद रखे, फिर बड़ा मंसूबा 18 लाख का याद रखे। फिर उसके बाद मस्जिद नबवी का रकबा 98/115। जी, इसको याद रखे। अब तो इतनी बातें याद हो जाना चाहिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। और एक बात यहाँ पर जो बताई गई, तीन मस्जिदें, बताया गया कि अगर सफर करना है, सफर, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे जो है तीन मस्जिदों की तरफ सफर, अगर सफर करने की नियत करे इबादत के एतबार से, यानी मस्जिदों का सफर इबादत के एतबार से अगर करना है, तो कहा कि इन तीन मस्जिदों का, किसका? एक मस्जिद हराम, और एक बैतुल मकदिस, और तीसरा जो है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी ये मस्जिद, मस्जिद नबवी, यानी तीन मस्जिदों की तरफ सफर करना और वहां पर जो इबादत की नियत से जाना, ये जो है फजीलत भी है और इसकी तरगीब भी दी गई है। जी, ये एक बात याद रखिए।
जी, आप खुश किस्मत हैं उर्दू वाले, जो आपको मतलब इतनी तफसीर मिल रही है, और जो जुड़ रहे हैं इंग्लिश वाले उनको भी जो है एक इल्म मिल रहा है। और एक बार बोलेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। एक बात याद रखें कि इसमें जो है 632 को जो है इसकी तामीर, 632 ईस्वी को इसकी तामीर शुरू हुई। 1909 में जो है पहली मर्तबा यहाँ पर जो है पूरे अरब में इस मस्जिद में जो है वो लाइट का, यानी बिजली के लाइटों का इंतजाम हुआ। फिर उसके बाद तीसरी बात जो याद रखना है, सऊदी फरमानरवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के दौर में इसका मंसूबा बना कि यहाँ पर 18 लाख लोगों का जो है नमाज पढ़ने का इंतजाम किया जाए। और फिर उसके बाद वो बताए कि अल्लाह के शुरू में मस्जिद नबवी का रकबा कितना था, उसकी जो है मतलब साइज 98 बाय 115। और फिर उसके बाद जो है एक बात और याद रखना है, तीन मस्जिदें जिस पर सफर करने के लिए कहा गया इबादत की नीयत से, तो उसमें से जो है एक मस्जिद जो मस्जिद नबवी, तीन मस्जिदें मैंने बताई, मस्जिद हराम, बैतुल मकदीस, और तीसरी मस्जिद मस्जिद नबवी। जी, पेज नंबर 279 पर देखिए, 279। अब यहाँ पर जो है, अब ये मस्जिद पहले से लेकर अब तक 100 गुना बड़ी हुई है, एक पॉइंट याद रखें। उस वक्त से लेकर अब तक 100 गुना बड़ी हुई है, एक पॉइंट याद रखें। और दूसरा इसमें एक बात याद रखें कि ये जो है पहले मस्जिद नबवी के बैरून में जो है जन्नतुल बकी, बिल्कुल शहर के मुजाफात में, यानी आखिरी हिस्से में, शहर के आखिर में। अब ये ऐसा हुआ कि जन्नतुल बकी, ये जो है पूरा का पूरा काम चलते चलते जो है यहाँ पर पूरा का पूरा जन्नतुल बकी से जो है ये मस्जिद का हिस्सा पूरा मिल गया। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि शाह अब्दुल्ला, एक याद रखें, शाह अब्दुल्ला 212 में जो है, शाह अब्दुल्ला ने 212 में शुरू करवाया था। तो ये पाए तकमील तक पहुंचने पर दोबारा, यानी तकरीबन ये पूरा होने के लिए, यानी जो इनका मंसूबा था, यहां से पूरा एक जुमला देखें कि शाह अब्दुल्ला ने 212 में शुरू करवाया था, पाया तकमील तक पहुंचने पर दोबारा 18 लाख अफराद के लिए मस्जिद में बैक वक्त नमाज अदा करने की गुंजाइश फराम कर देगा। यानी यहाँ पर जो है 2012, 212 ने 2012 में, जी, 2012 में शुरू करवाया था। अब मुस्तकिल जैसे आपको बताया गया कि एक जो है 1909 में यहाँ पर, और मंसूबा किसने बनाया, फिर उसके बाद जो है मुस्तकिल वो पूरा जो प्लान था 2012 में जो है वो मुस्तकिल उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा जो है तवज्जो दी गई। और सऊदी हुकाम का कहना है कि मस्जिद के मरकजी हिस्से की इमारत 6,14,800 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल होगी, इसको भी याद रखें। फिर उसके बाद जबकि मस्जिद और उसके सहनों का मजमुआ, ये तो अंदर का हुआ, बाहर पूरे के पूरे सहन मिलाकर इसका जो है वो याद रखना है 10,20,500 मुरब्बा मीटर पर मुहित होगा, यानी पूरा घेरा होगा। जी, पेज नंबर 279, यहां पर तीन बातें आपको इस पेज में याद रखना है। एक तो जो है शाह अब्दुल्ला ने 2012 में जो है ये जो प्लानिंग हुआ था उसको पूरा मुकम्मल करने के लिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो। फिर उसके बाद ये जो है जन्नतुल बकी, पहले तो जो है वो शहर के मुजाफात में किनारे में, लेकिन तौसी मस्जिद की होती होती, यानी मस्जिद बड़े होते होते बिल्कुल जो है वो जन्नतुल बकी के दीवार तक जाकर जो है मस्जिद पहुंच गई। फिर उसके बाद पूरा का पूरा कुल मुरब इसका जो रकबा है, यानी पूरा का पूरा एरिया जो है वो याद रखना है 6,14,800, 6,14,800 मुरब्बा मीटर। ये मस्जिद का अंदर का इहाता। बाहर का इहाता 10,20,000, 6,14,000, 10,20,500, 800 यहाँ पर 500, इतना याद रखें। तो वो प्लान के मुआफिक अगर इतना होगा तो फिर 10 लाख लोग जो है वो मस्जिद के मरकजी इमारत, और 8 लाख उसके बैरूनी सहन में नमाज पढ़ने के काबिल बनेंगे। जी, अब यहाँ पर इतना समझ में आ गई तीन बातें कि ये इतना इसका कितना रकबा है, और कितनी जो है वसी मस्जिद है, और पहले कितना हिस्सा था। अब बढ़ते बढ़ते जन्नतुल बकी के दीवार तक जो है पूरा का पूरा पहुंच गया। और फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर ज्यादा फोर्स 2012 में शाह अब्दुल्ला ने इसके ऊपर तवज्जो दी। जी, नीचे का पैराग्राफ देखें। इस पैराग्राफ में जो है छतरियों के बारे में बताया गया। सुभान अल्लाह, ऐसी छतरियां जो जो गए हैं मस्जिद नबवी में, वो देखे होंगे कि 250 छतरियां,
لگانے کا حکم دیا تھا جو 1,34,000 مربع میٹر علاقے کو سایہ فراہم کرتی ہے نا؟ کتنا؟ ایک بات جو یاد رکھنا ہے، شاہ عبداللہ نے اس مسجد کے اندر خصوصی طور پر شاہ عبداللہ، یاد رکھیں، شاہ عبداللہ نے 250 چھتریاں لگانے کا حکم دیا تھا جو 1,34,000 مربع میٹر علاقے کو سایہ فراہم کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے فکر کی کہ عرب کی چلچلاتی دھوپ، یعنی اتنی جو ہے تیز دھوپ، پھر وہاں بارش، اور وہاں پورے کے پورے ہر اعتبار سے نمازیوں کو سہولت ہو سکے، اس لیے انہوں نے یہ انتظام کیا ہے۔ جی، تو یہ اس میں اتنا یاد رکھیں۔ پھر نیچے کا پیراگراف دیکھیں کہ جنت البقیع کا تاریخی قبرستان جو اب مسجد کے مغربی دیوار کے باہر ہے، ان چند عمارتوں اور جگہوں میں شامل ہے جو مسجد کے چاروں اطراف موجود ہیں۔ اب یہاں پر جو ایک بات یاد رکھنا ہے کہ قبرستان بھی مسلمانوں کے لیے اہم اس لیے ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، بیٹی اور دیگر رشتہ داروں کی قبریں ہیں جنت البقیع میں۔ جی، اور دوسری بات اس کے اطراف میں ہے۔ بس اس میں یاد رکھیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جنت البقیع کے پورے احاطے میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور جنت البقیع کیوں ہمارے لیے جو ہے ایک اہمیت اور اس کے جو قابل احترام ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، بیٹی اور دیگر رشتہ داروں کی قبریں ہیں، صحابہ کی قبریں ہیں۔ جی، اس لیے، اور پھر اس کے بعد مسجد کے احاطے میں بہت ساری عمارتیں، شاپنگ مال، بڑے بڑے شاہراہ شامل ہے۔ شاہراہ یعنی بڑے بڑے راستے۔ جی، اتنی بات یاد رکھیں۔ اب نیچے دیکھیں، یہاں پر جو ہے آپ لوگوں کو خاص اس میں جو نیچے کے پیراگراف، مسجد نبوی اور مسجد حرام کا نظم و انصرام عصر حاضر میں۔ اب دیکھیں کہ مدینہ مسجد نبوی کا اور مسجد حرام دونوں کا انتظام ایک ہی ادارہ کرتا ہے۔ ایک پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ دونوں مسجدیں، مسجد حرام اور مسجد نبوی کا انتظام ایک ہی ادارہ چلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد کی نگرانی، انصرام یعنی پورا سسٹم، نظم و انصرام یعنی پورا اس کا جو ہے دیکھ ریکھ۔ اب یہاں پر دیکھیں دوسرے اس میں کہ یہ جو ہے جتنے بھی جو ہے سعودی شاہی خاندان کے لوگ ہیں، یہ خود اپنے آپ کو خادم الحرمین کہتے ہیں، یعنی ہم دونوں مسجدوں کی خادم ہیں۔ جی، یہ جاننے کی ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون سا ادارہ ہے، مستقل وہاں کا ایک نظام ہے، الگ 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 کمپنیاں جو ہے وہ ہیں۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اچھے لوگوں کے ہاتھوں یہ انتظام رہے۔ آپ سے بس اتنا درخواست اور اتنا اشارہ ہے، اللہ سے دعا کریں کہ جو بھی ادارہ جب اس کو لیتا ہے سنبھالنے کے لیے، وہ بس اچھے لوگوں کے ہاتھ آئے۔ جی، اب یہ یہاں پر دو باتیں یاد رکھنا ہے آپ کو کہ ایک ہی ادارہ دونوں مسجدوں کا نظام چلاتا ہے، اور جو بھی جو ہے سعودی کے شاہی خاندان والے اپنے آپ کو دونوں مسجدوں کا خادم بتاتے ہیں۔ اور پیج نمبر 280 پر دیکھیں کہ سب سے پہلے اس مسجد کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد صحابہ، اور اس کے بعد صحابہ، اور اس مسجد کے جو ہے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو یاد رکھیں، میں بہت آسان انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چیزیں آپ لوگ یاد رکھیں۔ اس مسجد کے پہلے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد جو ہے صحابہ دوسرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پیج نمبر 280 پر جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مسجد کے جو ہے پہلے مؤذن حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے، پورا نام ان کا ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، انہوں نے جو ہے خواب دیکھا اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی صحابہ جو فکر کر رہے تھے کہ ہر قوم میں عبادت کے لیے بلانے کا الگ الگ ایک کچھ نہ کچھ طریقہ ہے، کوئی شنگ بجاتا ہے، کوئی ڈھول بجاتا ہے، کوئی جو ہے وہ باجا بجاتا ہے، تو ہمارا بھی کچھ نہ کچھ طریقہ ہونا چاہیے۔ سب لوگ اس فکر میں تھے نماز کو بلانے کا کیا ہو، تو اس وقت جو ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے خواب دیکھا، اور یہ جو ہے کوئی فرشتہ آ کر یہ اذان کے الفاظ کہہ رہا ہے، تو آپ نے آ کر اللہ کے نبی کو بتایا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، اب نماز کو جو ہے بلانے کے لیے یہ شان ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کے کہ آپ نے خواب دیکھا، اور انہی کے خواب کے موافق جو ہے یہ اذان کی ترتیب شروع ہو گئی۔ جی، یہ تین باتیں آپ کو اس میں یاد ہونی چاہیے
امام پہلے اللہ کے نبی، معزین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواب میں اذان دیکھنے والے صحابی عبداللہ ابن زید. تو اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ آپ جو ہے بلال کو اذان سکھاؤ. جی. اب یہاں پر چوتھی بات جو ہے یہ ہے کہ مسجد نبی میں کل معزن 17 ہیں، جو 5 وقت کی نماز ترتیب وار جو ہے دی جاتی ہے ان کو، اور ہر روز 3 معزن مقرر ہوتے ہیں. ہر جو ہے ہر روز. جی ٹھیک ہے، بولتے رہیں گے، آپ پوچھتے رہیں، میں بولتا رہوں گا. تو اس میں جو ہے پہلا تو جیسے حجرے کا مطلب، آپ لوگ جلدی نہیں جڑتے ہیں، بیچ بیچ میں جڑتے ہیں، پھر آپ کو بتا. چلو. کمرہ، حجرہ، کمرہ. اور یہاں پر جیسے 4 5 باتیں آپ کو یاد کرنا ہے. سب سے پہلے امام مسجد نبی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد صحابہ. دوسری بات، اس مسجد کے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر اس کے بعد سب سے پہلے اذان کو خواب میں دیکھنے والے کون ہیں؟ زید ابن عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ. عبداللہ ابن زید یاد رکھیں، پھر لمبا نام آپ کو شاید ہوگا، عبداللہ ابن زید. پھر مسجد نبی کے مؤذن کتنے ہیں؟ 17 ہیں. اور ہر روز 3 لوگ جو ہے طے ہوتے ہیں، اور 5 وقت میں، 5 وقت کے لیے ان کا کام اذان بھی ہوتا ہے، اور ان کا کام جو ہے، آپ کا کام پوچھنا ہے، میرا کام بتانا ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے. ہماری خوش قسمتی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق دی ہے. جی. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، بس اللہ کا فضل ہے. اللہ نے جو ہے اتنے بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے جو ہے نالائکوں کو، نااہلوں کو چن لیا ہے، تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ پوچھتے رہیں، کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے. جی. بس سمجھ میں آئے، یہی بڑی بات ہے. مقصد یہی ہے کلاس چلانے کا. پچھلے سال کلاس چلائی، اس سال کلاس اس لیے چلائی جا رہی ہے کہ سب کو سمجھ میں آ جائے اور سب آسانی سے یاد کر لیں. میں نے بتایا کمپٹیشن اور ایک نام ہمارا جو ہے مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد آپ کو یہ سب چیزیں پیارے آقا کی سیرت کی یاد کرنا ہے، ہم کو، آپ کو، سب کو. چلو. اب یہاں پر میں نے بتایا آپ کو کہ 3 مؤذن طے ہوتے ہیں. وہ 3 مؤذن کیا کرتے ہیں؟ اذان کا کام، اور پھر اس کے بعد مکبریہ کا کام، یعنی یہ جو ہے امام کی آواز دوسروں تک پہنچانے کا کام. جی. یہ کام کرتے ہیں اذان دینے کا، اور جو ہے وہ اس کا تکبیر جو ہے امام کی آواز دوسروں تک پہنچانے کے لیے مکبر جو طے ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ بھی کام انجام دیتے ہیں. اب نیچے پیراگراف میں دیکھیں کہ یہی بات جو پچھلے بار بتائی گئی وہی یہاں پر اس کا تذکرہ ہے. کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین ایسی پڑی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ پچھلے بار بتایا گیا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 10 دینار دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین 2 یتیموں سے، سہل اور سہیل نام یاد رکھے ان کے، پچھلے نام نہیں تھا، یہاں پر نام سہل اور سہیل تھے، ان سے خریدی. اب یہ پہلے زمین جو ہے کھجور سکھانے کے لیے کام آتی تھی. سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں شریک ہوئے ہیں تعمیر میں، تو پچھلی بار پڑھ چکے. یہاں پر جو یاد رکھنا ہے، ایک تو 10 دینار میں، اور کس سے خریدی؟ سہل اور سہیل سے. اس سے پہلے مسجد میں کیا ہوتا تھا؟ اس جگہ پر کھجوریں سکھانے کا کام ہوتا تھا. اور اب یہاں پر دیکھیں، خاص کر کے مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر کی بنیادوں کا استعمال کیا گیا، اور مٹی کی دیواریں بنائی گئی. کھجور کے درختوں کے تنے اور شاخیں چھت کے لیے استعمال کی گئی. یہ یاد رکھیں، مسجد کے لیے کیا کیا؟ پتھر تعمیر کے لیے، اور مٹی کی دیواریں، اور کھجور کے درختوں کے تنے، کھجوروں کے درخت کے تنے اور شاخیں چھت کے لیے استعمال کی گئی. اور مسجد کے دروازے اس وقت کتنے تھے؟ 3 تھے جب یہ مسجد کا، اور اس کا رخ مسجد اقصی کی جانب تھا. اس کا رخ کس کی جانب تھا؟ مسجد اقصی کی جانب تھا. یہ بھی یاد رکھے، ہے نا. تو اس میں جو ہے مسجد نبوی، مسجد نبوی پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی. جی. اب یہاں پر ایک تو بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ 10 دینار میں خریدی. دوسری بات یاد رکھنا ہے سہل اور سہیل سے خریدی. اور تیسری بات یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہے زمین ایسی خالی تھی جو کھجور سکھانے کا کام آتی تھی. اور پھر مسجد کی تعمیر میں کیا کیا؟ پتھر، مٹی، اور اس کے چھت میں کھجور کے درخت کے تنے اور شاخیں. جی. اور مسجد کے دروازے اس وقت 3 تھے، یہ بھی یاد رکھیں. اور یہ یاد رکھیں کہ پہلے اس مسجد کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے جو ہیں
बैतुल अक़दस मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ा है, इसलिए कि हमारा एक किबला अव्वल है। कभी हमको नहीं भूलना है इसको। दुश्मन लाख कोशिश करेगा कि हम भूल जाएं, लेकिन हम मस्जिद अक्सा को नहीं भूल सकते। मस्जिद अक्सा से हमारी यादें जुड़ी हुई है। और प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 या 17 महीने इस तरफ नमाज रुक करके नमाज पढ़े हैं। मस्जिद, हाँ, मस्जिद कुबा अलग है, मस्जिद नबी अलग है। दोनों दोनों अलग अलग है। पहले बताया 14 दिन वहां रहकर मस्जिद कुबा बनाई अल्लाह के नबी ने। फिर उसके बाद जो है कुबा के मकाम पर मस्जिद कुबा बनी। अब यहाँ मदीने में, जी, 6 किलोमीटर का फासला है। 6 किलोमीटर का, 5 या 6 किलोमीटर। जी। अब यहाँ पर इसको याद रखें, जरा ध्यान से सुने। अब यहाँ पर जो है जब किबला की तब्दील हो गई, तो एक दरवाजा बंद करके दूसरे सिमत में एक दरवाजा बनाया गया। साहबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने एक तजवीज पेश की कि छत को जो है पुख्ता किया जाए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, पुख्ता न करें। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की झोपड़ी थी, ये छत अरीश मूसा यानी मूसा अलैहिस्सलाम की झोपड़ी है ना, तो की तरह रहेगा, मूसा के छप्पर नुमा छत की तरह। इसके 3 साल बाद तक फर्श को किसी किसी चीज से ढाका नहीं गया था। लेकिन अब बस इतना याद रखें, साहबा ने तकाजा किया कि छत को मजबूत बनाए। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, इसको मूसा अलैहिस्सलाम के झोपड़ी की तरह यानी मूसा अलैहिस्सलाम के छप्पर नुमा छत की तरह रहने दे। बस इतना याद रखें। मस्जिद का रकबा जो था कितना था, वो 1050 मुरब्बा मीटर उस वक्त, 1050 मुरब्बा मीटर। जी, इतना ही इसमें याद रखना है। एक तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम की छत की तरह जो है इसको रहने दो। और दूसरा याद रखना है कि मस्जिद का कुल रकबा कितना था, 10 1050 मुरब्बा मीटर। फिर उसके बाद जो है 7 साल के बाद, हिजरत के 7 साल बाद जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बढ़ाने का हुक्म दिया, तो 1425 मुरब्बा मीटर कर दिया गया। जी। अब यहां पर देखें कि कुछ चीजें आप लोगों को इसमें से पेज नंबर 281 में याद रखना है। अब यहाँ पर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बहुत एक है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ कुछ झलकियां हैं समझो। ये जो है हम लोग जो पढ़ रहे हैं, कुछ मग्ज पढ़ रहे हैं इसका, सॉरी, हम जो है कुछ बाहर की चीजें जो है इतनी पढ़ रहे हैं। अब ये आपको दरवाजे दिखाए गए अंदर जाने के। आप एक एक चीज का मुताला करके आप अंदर घुस कर जो प्यारे आका की सीरत को मालूम कर सकते हैं। ये पूरी किताब में ना सिर्फ झलकियां और आपको दरवाजे बताए जा रहे हैं, कौन से दरवाजे में जाकर आपको प्यारे आका की सीरत मालूम करना है। जी। हाँ। तो अब यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप दुनिया से पर्दा फरमाए, तो उस वक्त जो है साहबा फिक्र करने लगे कि आपको कहाँ पर दफन किया जाए। फिर उसके बाद माँ आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि नबी का जहां पर जो है, नबी जहां पर दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, वहीं पर आपको जो है वो दफन किया जाता है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं पर जो है वो दफन किया गया। फिर उसके बाद जो है आज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है आप ही को उसी हुजरे में माँ आयशा की इजाजत से, फिर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी माँ आयशा की इजाजत से उसी हुजरे में जो है आपको भी जो है दफन किया गया। फिर उसके बाद ये 3 बातें याद रखिए यहाँ पर कि 7 हिजरी के बाद 1400 मुरब्बा मीटर। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमाए, वहीं पर जो है आपको आपके हुजरे में, मायशा के हुजरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर, हजरत उमर। फिर उसके बाद देखें, अब मस्जिद नबवी का जो गुंबद है उसके बारे में आगे भी तफसील आएगी। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखें, हुजरे का मानी कमरा, कमरा कमरा। जी। यहाँ पर मस्जिद नबी का जो सब्ज गुंबद इसी हुजरे के ऊपर है, जो मायशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हुजरा है, उसी के ऊपर ये जो है हरा गुंबद है। खलीफा अव्वल यानी पहले खलीफा, पहले जो है खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक, खलीफा अव्वल यानी पहले खलीफा, पहले बादशाह अल्लाह के नबी सल्लम के बाद जो बने, वो पूरे के पूरे इस्लामी निजाम को संभालने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला। अब यहाँ पर देखें कि ये जो है उसमें जो है बस ये पूरे के पूरे पैराग्राफ में यहाँ पर इतना हम लोगों को समझाया गया है कि क्या खूब मस्जिद की खूबसूरती और मीनारे की खूबसूरती
और पूरी की पूरी चीजें उसे कैसे कैसे चीजों में जो है मतलब क्या क्या इस्तेमाल किया गया, उसकी रोशनियां, उसका साउंड, उसका सिस्टम, पूरे के पूरे जो है बहुत ज्यादा। यानी इतना इसमें सिर्फ मस्जिद नबी की खूबियों को जो जाते हैं वहां जाकर देखते ही रहते हैं। इतना खूबसूरत जो है वो नजारा है। और क्या क्या उसमें जो है मस्जिद के तामीर में जो है, उसके सहन तक और उसके अंदर के पूरे हिस्सों में और उसके सुतूनों में क्या क्या चीजें जो है लगाई गई है, वो पूरी की पूरी चीजों का तस्करा है। ठीक है। अब इसी के बाद क्या देखें, मस्जिद के 41 दरवाजे। अब यहाँ पर देखें कि ये जो है 41 मेन गेट है, ये याद रखें। मस्जिद के आर्किटेक्चरल डिजाइन के मुताबिक जो है ये 41 दरवाजे हैं। और हर दरवाजे के ऊपर एक पत्थर का बना ये जो है एक कतबा है, यानी उसके ऊपर लिखा हुआ है क्या, अमन और सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। जो कि कुरान कुरान की सूरह इसमें जो है आयत उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। आपको सूरत का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप याद रखें कुरान पाक की जो एक आयत उदखुलूहा, वो भी याद ना हो तो कम से कम इतना याद रखें कि मस्जिद के जो 41 गेट हैं, उन 41 गेटों पर हर जगह जो है ये लिखा हुआ है, अमन और सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। बस इतना ही याद रखें। आगे उसके बाद देखें, ये 85 जो दरवाजे हैं ये अंदर के दरवाजे। किसी एक गेट में एक दरवाजा आता है, किसी में दो दरवाजे आते हैं, किसी में तीन दरवाजे आते हैं। कुल 85 दरवाजे हैं जी। और गेट कितने हैं, 41। जो गए हैं उनको मालूम है। फिर वहां पर जो है कैसे हैं कि करंट के जो है मतलब सीढ़ियां भी बने हुए हैं, जिसको एलिवेटर यहाँ पर जो बताया गया, इस तरह करंट की सीढ़ियां भी ऊपर चढ़ने के लिए। और उसके बाद जो है आपको याद रखना है, एक तो जो है 41 गेट, 85 85 दरवाजे, और फिर जो सहूलत के लिए जो है ये। और उसके अलावा जो यहाँ पर हजरत अल्लाह के नबी सल्लम के बाद दूसरी मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इसमें जो है ये काम की जो है तोसी नहीं हुई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में इसकी तोसी हुई, इसको याद रखें। यहाँ पर जो है तीन बातें जो याद रखना है, 41 गेट और 85 दरवाजे, और सहूलत के लिए जो है करंट के सीढ़ियां। और फिर उसके बाद जो है चौथी बात, हजरत उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वक्त में जो है इसके काम का जो है तोसी नहीं हुई, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। फिर उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर ये उसके बाद के प्यारे ग्राफ में यही बताया गया कि मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने की फजीलत क्या है। देखें, बताया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मस्जिद में अदा की गई एक नमाज मक्का की मस्जिदुल हराम को छोड़कर बाकी तमाम मस्जिदों में अदा की गई 1000 नमाजों से अफजल है। अरे बात समझ में जी। यहाँ पर जो है मस्जिद नबी में नमाज पढ़ना दूसरे मस्जिदों में नमाज पढ़ने से जो है ना 1000 नमाजों से अफजल है, आप अंदाजा लगाएं। तो ये इसकी सवाब है यहाँ पर नमाज पढ़ने का। फिर उसके बाद तीन मस्जिदें जो आपको मैंने पीछे बताया था उसमें से एक मस्जिद है। और हज और उम्रे के बाद जो है लोग जो आते हैं हज और उम्रे के दौरान लाखों की तादाद जो है मुसलमान मस्जिद को आते हैं। यहाँ पर जो है एक बात याद रखें, हजरत उमर ने कहा था अगर मस्जिद अपनी असल बुनियादों पर खड़ी है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं कि इसकी तोसी शाम तक पहुंच जाए। कहां तक पहुंच जाए, शाम तक। यानी इतनी वसी जमीन जी। मुल्क शाम कहाँ है, अल्लाह हजरत उमर ने फरमाया था इस बात को कि ये हो सकता है कि मतलब इतनी यहां तक वसी हो जाए, क्योंकि आप अंदाजा लगाएं बढ़ते 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 जो है कहां तक जा रही है जी। मैं आपको तो बस पॉइंट बता रहा हूं जैसे याद करना है। अगर शुरू से आप तोसी मानी मस्जिद को चौड़ा करना, मैं इतना आसान करके बता रहा हूं आप लोगों को, शायद आपको नोट भी कर लेना चाहिए बातें। और आपको जो है मतलब मैं मुख्तसर बहुत ही आहिस्ता और आराम से चल रहा हूं। मैंने शुरू में बता दिया कि शुरू से लेकर अब तक जितना याद करना नहीं था इन सफात में इतना याद करना है, इसलिए मैं इसको इतने आराम से बोल रहा हूँ। फिर और अब कंफ्यूज हो रहा है तो बताओ मैं आप क्या हेल्प कर सकता हूँ इस मामले में आपकी। चलो, अब ये याद रखेंगे इसको, इस पैराग्राफ में मस्जिद की फजीलत नमाज पढ़ने की, और तीन मस्जिदें और तुम्हारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल ये जो आपने फरमाया था उसको याद करें। और फिर उसके बाद इस वक्त 100 गुना ये मस्जिद बड़ी हुई है, और पूरा का पूरा पुराना शहर जो था वो पूरा का पूरा मस्जिद के इहाते में आ गया है जी। यहाँ पर इतना याद रखें, पूरा का पूरा
यानी ये मस्जिद जो है 100 गुना बड़ी हुई है, पूरा का पूरा पूरा पुराना मदीना जो है वो मस्जिद के अहाते में है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसकी तोसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो की, वो लोगों के भीड़ के बढ़ने की वजह से, जैसे आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर इसको याद रखें। फिर उन्होंने मस्जिद के इर्द गिर्द की जमीनें खरीदी और मस्जिद का हिस्सा बना दिया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के मकानात भी जानिब कुछ नहीं किया गया, बाकी दूसरी तरफ जो है तोसी हुई। हाँ। अब यहाँ पर जो है आपको बस इतना याद रखना है इसमें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त जो है वो जो काम शुरू हुआ था, उसके बाद 638 में जो है ये कुछ मस्जिद की तोसी हुई। और जो है जो हुजरे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है बीवियों के, हमारी माए प्यारे आका मोहम्मद अरबी वसल्लम के अजवाज मुतहहारात, हमारी माओं के जो कमरे मकानात थे उसको ऐसे ही छोड़ा गया। उसके बाद तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 650 में साहबा से मशवरे के बाद जो है, ये एक पॉइंट याद करना है, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 650 ईस्वी में साहबा से मुशावरत के बाद, मुशावरत यानी एक मीटिंग कायम की, मशवरा किया, उसके बाद आपने इसकी तोसी का काम शुरू किया। फिर उन्होंने इसमें प्लास्टर और तराशे हुए पत्थर की दीवारें और तराशे हुए पत्थर और लोहे के मदद से सुतून बनवाए और टील की लकड़ी के छत बनवाए। ये कब हुआ? उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में प्लास्टर का काम हुआ, और इसी तरह पत्थर की दीवारें जो है वो मजबूत, और इसी तरह लोहे की मदद से सुतून बनवाए और टील की लकड़ी के छत बनवाए। अल्लाह के नबी के जमाने में छत कौन सा था? खजूर के। और अब टील की लकड़ी के छत। बस इतना याद रखें, एक किस्म की लकड़ी है, जिस तरह नीम की लकड़ी, जिस तरह जो है वो दूसरे लकड़ियां तो टील की लकड़ी। तो यहाँ पर ये इतना ही याद रखिए 283 तक, बहुत यानी तकरीबन आज जो है बहुत कम आप लोगों को 5-6 सफ़े समझाए गए हैं। 283 से इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे इसको। कल मैंने बहुत ही अच्छे अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता जो है, अच्छा तो नहीं कहूंगा, बल्कि आसान अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। ये मुख्तसर बातें ही याद करना है। आप रिकॉर्डिंग भी सुन लें, जब आएगा आपको तो पता चलेगा कितना। अब फिर उसके बाद और 2-3 सफ़े हैं जिसको हमको अच्छी तरह और सुनना है, इंशाल्लाह उसको कल सुनेंगे हम लोग। ठीक है जी। और इंशाल्लाह हो सकता है कल या फिर उसके बाद जो है, उसके बाद वाले दिन, यानी आज तारीख कितनी है? 9 तारीख है। कल 10 तारीख है। 10 तारीख या 11 तारीख को आपको जो है इम्तिहान की डेट बताई जाएगी कि इम्तिहान की डेट क्या होगी। जी। आपकी राय क्या है कि कब क्या मतलब कब होना चाहिए? इंग्लिश वालों के लिए जितना दिया गया है उनकी किताबें उतना ही याद करना है, उसी एतबार से आएगा। उर्दू वालों को उर्दू किताब के एतबार से आएगा, इंग्लिश वालों को इंग्लिश किताब के एतबार से आएगा। जी। अच्छा, एक मिनट। अक्टूबर 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 अक्टूबर। अच्छा। जी। अक्टूबर फर्स्ट वीक, अक्टूबर 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 एंडिंग, अक्टूबर एंडिंग में। जी। अक्टूबर में हो, अक्टूबर में हो, अक्टूबर में हो। हमारा प्लान तो सितंबर के लास्ट का था, आप लोग सब अक्टूबर कह रहे हैं। अच्छा। बुक पढ़ना खत्म होने के बाद तो तकरीबन आप 3-4 महीने और लगाएंगे इसको। बहुत सारे लोगों ने तो पूरी पढ़ भी ली, याद भी की है कई लोगों ने। माशाल्लाह अपना फीडबैक भी उन्होंने पेश किया कि हम लोगों ने जो है अक्सर किताब का हिस्सा याद कर लिया है। पढ़ भी ली है, याद भी की है बहुत सारे लोगों ने माशाल्लाह। उन्होंने अपना मैसेज, ठीक है, अच्छी बात है। जी। चलो, हमारा तो इरादा था सितंबर लास्ट का, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ऐलान भी किया था, लेकिन आप सब लोगों की राय आ रही है अक्टूबर की, तो देखेंगे जो मशवरे में होता है आप लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है, आप लोगों की राय की कदर करेंगे इंशाल्लाह। 12 से एग्जाम है कॉलेज की। 12 को तो शायद संडे आता है, संडे एग्जाम है। यानी 13 से। 13 से।
ٹھیک ہے، اچھی بات ہے انشاءاللہ. آپ کا سب کا خیال کر کر ہی جو انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. جزاک اللہ. کلاس شروع ہو گئی انگلش کی بھی. تو آپ دیکھیں گے. آپ آخری کے جو بہت اہم باب ہیں، اور انشاءاللہ دعا کریں سب لوگ. اب دیکھیں جب ہوگا. اب سپٹمبر کا تو آپ لوگوں کا کسی کی رائے نہیں آئی سپٹمبر میں. سب اکتوبر کی ہے، تو اکتوبر میں جو ہے وہ دیکھیں گے ہمارے ذمہ دار ساتھیوں سے مشورہ کر کر جو ہوتا ہے انشاءاللہ اس اعتبار سے آپ کو سمجھائیں گے کل یا پرسوں کے دن. ٹھیک ہے. دعا کریں. دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اکتوبر لاسٹ تو بہت دور ہو جائے گا، نہیں ہوگا. کیونکہ بہت تقاضے ہمارے ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہیں. کنٹینیو کام ہوتے رہتے ہیں. الحمدللہ رحمان فاؤنڈیشن کی جانب سے گوکاک ہمارے جو کنور برانچ ہے، بہت سارے کام ہوتے رہتے ہیں ابھی، اور بہت سارے پلاننگ آگے ہیں. اگر اسی کو لیٹ کریں گے تو دوسرے کام بھی رہیں گے. اب یہ جو ہے امتحان کے بعد پیپر چیک کرنا، پھر آپ کا جلسہ کرنا ایک بڑا کام ہے. اس لیے اتنا لیٹ تو نہیں ہوگا، البتہ کریں گے، آپ لوگوں کو بتائیں گے. دعا کر. سبحان اللہ بحمدی. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.